Namaste. Dear children, I welcome you all in my channel Geography Academia. Today we will begin second chapter of class 9th Physical Features of India. Let me tell you one thing beta, this chapter is little bit difficult than first chapter. तो इस चैप्टर को आप शुरू से ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो लास्ट तक आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल स्टडी द पोर्शन विच आई एम टीचिंग टुडे इटसेल्फ. जब आप देखें इसे पूरा देखें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट होगा तो आपको पीछे का बेस अच्छे से बना रहेगा. So without wasting time, let's begin our second chapter of class 9th Physical Features of India. What is the meaning of the word physical? Physical means natural. What are the natural landforms present on the earth? In this chapter we are talking about India. So we will talk about the different physical features or natural features which are present in India. India is a blessed country which has all the natural features possible on the earth. We have mountains, we have plains, we have plateaus, we have desert, we have hills, valleys. Whatever physical feature is there on the earth is present in India. So India is a country of varied relief, varied natural features, varied physical features. So how these physical features are formed, how the Himalayas were formed, how the northern plains were formed, how Peninsula Plateau was formed. For this, the scientists have given many theories. कुछ कहते हैं ऐसे ही बना होगा, कुछ कहते हैं ऐसे बना होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो थ्योरी है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. According to the theory of plate tectonics, the earth crust is made up of 7 major plates and some minor plates. These plates keep moving gradually and results in the present position of the continents. The 3 plate movements are, the plates कितने तरीके से मूव करती हैं अर्थ के नीचे, इनको हम कहते हैं the 3 plate movements. The first plate movement is convergent boundary. Convergent movement और convergent boundary. Convergent का मतलब होता है when the plates move towards each other, when the two plates move towards each other and they result in folding. The two plates moving towards each other results in folding. Folding means the earth in between gets folded and this movement of the plates results in formation of mountains which are called fold mountains. This I will explain you with the help of this paper. ये मानो बेटा कि ये एक अर्थ क्रस्ट है और यहाँ से 2 प्लेट्स हैं जो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं और ये फिक्स्ड अर्थ है, क्रस्ट है. तो जब ये नीचे अर्थ के नीचे ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ चलती हैं, देन द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट rises up and this mountain which is formed due to convergent movement of the plates results in formation of fold mountains. Himalayas are formed due to convergent movement of the plates. That is why they are called fold mountains. Second movement of the plates is divergent movement. As the word suggests, divergent movement. Divergent means
moving away from each other. When the two plates they start moving away from each other, it results in faulting. Faulting means formation of rift valley. जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग चलने लगती हैं तो बीच में क्या पड़ जाता है, एक खाई जैसी चीज, एक रिफ्ट. इसका भी एग्जाम्पल इंडिया में है, रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी. दे बोथ फ्लो थ्रू दिस रिफ्ट वैली. ओके, थर्ड मूवमेंट ऑफ प्लेट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. Transform boundary or transform movement means when the two plates horizontally pass each other. They do not collide, they do not crumble, they horizontally pass each other. So movement of these plates have changed the position and size of the continents. तो आज जो हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स आप सबको मालूम है उनकी लोकेशन कहाँ पर है. क्या ये बहुत साल पहले भी ऐसे ही था? द आंसर इज नो. ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स वर टुगेदर. एक दूसरे के साथ ये एक जिगसॉ पजल की तरह एक दूसरे के साथ फिक्स्ड थे. कभी आप ध्यान से वर्ल्ड मैप देखेंगे और मैं आपको यहाँ पर अपने एक मैप में भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये कॉन्टिनेंट आपस में किस तरीके से जिगसॉ पजल की तरह फिक्स थे. छोटे में हम लोग एक जिगसॉ पजल खेलते थे जिसमें हमको अलग अलग पार्ट्स होते थे जिनको हमको एक दूसरे को राइटली फिक्स करके एक पिक्चर सी बनानी होती थी. वो पिक्चर कोई भी हो सकती है, कोई सीनरी हो सकती है, कोई ताजमहल, कुतुब मीनार, कुछ भी हो सकता है. उसके अलग अलग टुकड़े करते होते थे और हमको उसको उनकी राइट पोजीशन में रखकर उनको फिक्स करना पड़ता था. ऑल द कॉन्टिनेंट्स विच वर फिक्स्ड टुगेदर एंड देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज नोन एज पैंजिया. पैंजिया क्या था? पैंजिया was a supercontinent in which all the continents were fixed together and they were moving together, and it was surrounded by the ocean. It was surrounded by the ocean. So how this Pangaea broke up, पेंजिया कैसे टूटा, धीरे धीरे ये प्लेट्स कैसे अलग अलग हुई. सो इन दिस पिक्चर वी सी दैट हाउ ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ Pangaea and how slowly and steadily they drifted away and the present world map has evolved. Okay. Now my next topic is formation of the Himalayas. Formation of the Himalayas. How the Himalayas are formed. हिमालयाज एक बार हमने पहले कन्वर्जेंट मूवमेंट में देखा था दैट हिमालयाज आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स. So now you will see how these plates moved, how they broken up into pieces. So the landmass, the supercontinent Pangaea broke into many plates due to convectional currents. Due to convectional currents. What are these convectional currents? इसके लिए मैं आपको पहले एक आपके ही लाइफ का एक एग्जाम्पल बताती हूँ. आपने प्रेशर कुकर देखा है. प्रेशर कुकर में क्या होता है बेटा, आप टेम्परेचर गैस ऑन करते हैं, टेम्परेचर मिलता है. टेम्परेचर मिलने से जो कुकर के अंदर खाना है रखा है, आलू रखा है, दाल रखी है, वो उस प्रेशर जो प्रेशर बिल्टअप होता है कुकर के अंदर, तभी उसका नाम प्रेशर कुकर है. वो प्रेशर जो बनता है उससे खाना बन जाता है और बड़े मज़े से आप एक विसल से प्रेशर रिलीज हो जाता है. This is the first situation in which the food is cooked very easily due to the pressure build up inside the cooker.
अब सेकंड सिचुएशन क्या होती है? सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, जो प्रेशर कुकर की लिड है उसके नीचे कुछ दाल के छिलके विलके चिपक गए, आलू का छिलका चिपक गया और उससे प्रेशर निकलना बंद हो गया। आपने नॉर्मली गैस ऑन करी, प्रेशर कुकर रखा, दाल रखी या आलू रखा या चावल रखा, जो भी रखा, और आपने ऑन कर दिया। आप तो फ्री हो गए कि 2 विसल के बाद खाना बन जाएगा, मेरे को ऑफ करना, लेकिन विसल तो आई नहीं, क्योंकि उसका जो पैसेज था वो ब्लॉक हो रखा है। अब क्या होगा? तो एक प्रेशर कुकर का ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसकी लिड में नीचे की तरफ से, ये अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रेशर कुकर बनाने वालों ने उसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व दी है। जो प्रेशर कुकर के लिड में एक सेफ्टी वॉल्व होती है, छोटी सी इस तरह का एक सेफ्टी वॉल्व होती है, जो कि अगर विसल ना बजे, वो रास्ता ब्लॉक है, तो ये सेफ्टी वॉल्व टूट जाती है और सारा प्रेशर इससे निकल जाता है। ये सेकंड सिचुएशन है। फिर आप बाजार में जाके दोबारा से सेफ्टी वॉल्व लगवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स इन दिस, बट प्रेशर इज रिलीज्ड। लेकिन जो थर्ड सिचुएशन है, इसमें ना तो सेफ्टी वॉल्व ब्रेक होती है और ना ही विसल बजती है। टेम्परेचर बढ़ रखा है, प्रेशर बन रहा है और प्रेशर को रिलीज होने के लिए कोई रास्ता नहीं है, नीदर द विसल नॉर द सेफ्टी वॉल्व। नाउ द प्रेशर, द कन्वेक्शनल करंट्स विच आर generating inside the cooker, ये कन्वेक्शनल करंट जिनको बाहर निकलना है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, प्रेशर ये कुकर के अंदर से ये ऊपर को जा रही है, लेकिन इन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब ये क्या करेंगे? कुकर को ब्लास्ट, कुकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। एज वी नो दैट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ there is high temperature. As we go towards the interior, temperature increases. Due to increase in temperature, pressure builds up. Due to pressure, these convectional current moves upward. अब अर्थ में तो कोई सीटी नहीं है या कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है जिससे प्रेशर रिलीज हो जाए, तो वो भी जैसे प्रेशर कुकर ब्लास्ट हुआ था, वो पेंजिया को इन्होंने ब्लास्ट कर दिया। पेंजिया डिवाइडेड इनटू मेनी प्लेट्स, मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स। सो इतना हमको याद रखना है कि व्हाट आर कन्वेक्शनल करंट्स? कन्वेक्शनल करंट्स आर दोज करंट्स which generate due to high temperature inside the earth and high pressure inside the earth, and it results in breaking of Pangea. Pangea breaks into two big land masses. In the south was Gondwana landmass. Gondwana landmass. And in the north was Laurasia. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमको केवल गोंडवाना लैंडमास ही पढ़ना है, तो वी विल स्टडी अबाउट गोंडवाना लैंडमास। तो गोंडवाना लैंड वाज comprised of 5 continents. This you have to remember. The 5 continents Gondwana landmass was formed were Indian subcontinent. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सब कॉन्टिनेंट पढ़े थे, 5 कंट्रीज टुगेदर मेक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। एक ये इसका पार्ट था, नंबर 1। नंबर 2 was ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3 एंटार्क्टिका। नंबर 4 साउथ अमेरिका। नंबर 5 साउथ अफ्रीका। ये 5 कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे और ये गोंडवाना लैंडमास का पार्ट थे। गोंडवाना लैंडमास इन 5 कॉन्टिनेंट से मिलकर बना था। सो द गोंडवाना लैंडमास
again broke into many pieces due to same theory of convectional currents. कन्वेक्शनल करंट से ये गोंडवाना लैंड मास ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद एक प्लेट जिसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना से अलग होकर ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ चलने लगी. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम Gondwana landmass started moving northward. In the north, there was much larger plate. Its name was Eurasian plate. Eurasian plate. This plate was much bigger in size than in Indo-Australian plate. जब ये प्लेट ऊपर की तरफ चल रही थी तो बीच में यहाँ पर एक ओशियन था. इस ओशियन का नाम था टेथिस सी, TETHYS, टेथिस सी. ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ऊपर को चली तो due to convergent movement of the plates, the sedimentary rocks of the Tethys Sea rose up and the Himalayas were formed. This movement, convergent movement of Indo-Australian plate and Eurasian plate, this resulted in upliftment of sedimentary rocks of Tethys Sea. यहाँ पर हमेशा ओशन के नीचे सेडिमेंट्स होते हैं. The sedimentary rocks of Tethys Sea rose up and Himalayas were formed in 3 stages: the Great Himalayas, the Middle Himalayas and the Shivaliks. तो हिमालयास इस तरीके से बने. पहली बार जब कोई माउंटेनियर एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा तो उसने वहाँ पर भारत का झंडा लगाया, वहाँ से कुछ स्टोन्स और कुछ पेबल्स और कुछ मिट्टी नीचे लेकर आया. और जब उस स्टोन्स पेबल्स की जब साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में चेक किया तो उन्हें क्या मिला कि इसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हैं जो समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मैरीन एक्वाटिक एनिमल्स के फॉसिल्स मिले. तो इससे पता चलता था कि वंस द हिमालयाज वर अंडर द ओशियंस. हिमालयाज के टॉप में सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ से आएगी? सेडिमेंट्री रॉक तो हमेशा ओशियन या रिवर में मिलती है, सेडिमेंट्री सॉइल सेडिमेंट्स. तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि हिमालयाज वर अंडर द ओशियंस एंड ड्यू टू convectional current Gondwana landmass broke up and the Himalayas were formed. Okay, now we will do the formation of Himalayas again in keywords. How we are going to write the formation of Himalayas? Number 1, there was one old landmass known as Gondwana landmass. गोंडवाना लैंड मास. सेकेंड पॉइंट पे हमको क्या लिखना है? कन्वेक्शनल करंट्स. ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स दिस गोंडवाना लैंड मास स्प्लिट इनटू मेनी प्लेट्स. ओके. थर्ड हमको लिखना है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट है. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड मास मूव्ड नॉर्थवर्ड. There it collided with much larger Eurasian plate.
And due to this collision, the Tethys Sea, which was between Indo-Australian plate and Eurasian plate, rose up in three stages, and thus the Himalayas were formed in three stages. Okay. Now you see this video. In this video, you will have a better idea how the Himalayas were formed. So now I think you have a clear picture of how the Himalayas were formed. Okay, beta. Now the last topic for today's lecture is formation of the northern plains. Formation of the northern plains. आफ्टर द हिमालयाज वर फॉर्म, हिमालय बन गए, लेकिन वो टेथिस सी का जो पानी था वो कहाँ जाएगा? कुछ पानी भारत की तरफ, कुछ पानी चाइना की तरफ। जो इंडिया की तरफ पानी आया तो जो हमारा साउथ है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यू नो द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला, आई थिंक पेनिनसुला मीन्स विच हैव वाटर ऑन थ्री साइड्स। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड मास। ये वही पुराना गोंडवाना लैंड मास का पार्ट है। इसीलिए हमारा पेनिनसुलर इंडिया इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट and stable part of India. It is the most strongest and stable because it is a part of Gondwana land mass. ये गोंडवाना लैंड मास यहीं पर था। आगे से थोड़ा सा इसमें डिप्रेशन आ गया, यहाँ पर हिमालयाज बन चुके थे। इस जगह पर एक लो लाइंग एरिया बन गया, लो लाइंग एरिया जिसमें पूरा पानी, शेलो वाटर वॉज देयर ऑफ द टेथिस सी। यहाँ पर कुछ पानी, एक मार्शी दलदल टाइप लैंड बन गई थी। अब इस लैंड को हिमालय से आने वाली रिवर्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू से आने वाली रिवर्स, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ and the rivers coming from the south, they deposited their sediments in this low-lying area, and gradually by the deposition of sediments, these northern plains were formed. So northern plains of India is one of the most fertile plain in the world. It is why it is one of the most fertile plain, because इसकी कोई ऊपर की 3, 4, 5 लेयर ही सेडिमेंट्स की नहीं बनी. It is formed from bottom to the top. It is formed by the deposition of sediments brought by the rivers of the north and rivers from the south. So this is how the northern plains were formed. So for northern plains, you have to write only these points. Number 1, after the formation of
the Himalayas, there was a low-lying area between peninsular plateau and the Himalayas. This low-lying area between the Himalayas and the peninsular plateau was filled by the sediments brought down by the rivers of the north and the south, and thus gradually, due to the deposition of sediments, the northern plains were formed. This is a very fertile plain of India and very suitable for farming. Thus it is called granaries of India, northern plains. So in this lecture we have covered for these points we have done till the formation of the northern plains. In my next lecture, we will study about the major physical features of India. Okay, thank you. Have a nice day.